In this question, in a photoelectric effect experiment, a point source of light of power 40 watt emits monoenergetic photons of wavelength lambda 1 that can just exit photoelectrons from an isolated metallic sphere of radius 1 centimeter. So अगर ये given है कि it can just exit, that means this lambda 1 corresponds to the threshold wavelength. So radius of this sphere is 1 centimeter plus data distance 1 meter from the light source. Now three other sources of wavelength lambda 2, lambda 3, lambda 4 which are emitting same number of photons as that of lambda 1, same number of photons. So all these three have power something like that for which they are emitting the same number of photons as that of lambda 1, are brought near the source of lambda 1. So all the other sources are also kept near to this point. Assume photo efficiency is 10 to the power minus 6. So these are the values of the lambdas. So various options are asked. Number of photoelectrons emitted from this sphere per second is this much. The potential of this sphere when emission of photoelectron stops is this much. The time after which the emission of photoelectrons will stop. So let us analyze the situation. So let us first analyze the situation for this statement. तो यहाँ पे lambda 1 है, lambda 1 let's say this source is kept somewhere here. तो यहाँ पे lambda 1 का source रखा हुआ है, this is a point source. और एक तरीके से जो यहाँ पे स्फेयर है, स्फेयर की रेडियस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू दी गैप बिटवीन देम. तो ये जो गैप है, दिस गैप इज़ 1 मीटर. तो इनके बीच में जो गैप है वो 1 मीटर का है, जैसे इट इज़ प्रोवाइडेड इन दी प्रॉब्लम. सो दिस इज़ द 40 watt, this is 1 meter and sphere radius is 1 centimeter. So these are the datas. So this is the 1 meter distance and this radius is 1 centimeter. So that means जो यहाँ से लाइट जा रही है वो लाइट ऑलमोस्ट यू कैन टेक कि लाइट इज़ पैरेलल हियर. जो लाइट है वो लाइट यहाँ पे पैरेलल इंसिडेंट हो रही है. तो अगर मैं इसको एक बड़ी पिक्चर की फॉर्म में दिखाऊँ यहाँ पे, तो जो भी स्फेयर है यहाँ पे, उस स्फेयर पे जो लाइट आ रही है, दैट लाइट इज़ लाइक पैरेलल टू इट. इट इज़ लाइक दिस, पैरेलल लाइट इज़ कमिंग ऑन टू दिस. तो अगर ये p पावर का सोर्स है, तो अगर ये डिस्टेंस लेट से कैपिटल आ रहा है, तो इससे r डिस्टेंस पे व्हाट इज़ द इंटेंसिटी. सो इंटेंसिटी इज़ द पावर पर यूनिट एरिया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया. सो इट इज़ p divided by 4 pi r square. So this is the intensity and what is the energy that is incident on this. तो इस स्फेयर के ऊपर कितनी एनर्जी इंसिडेंट हो रही है पर यूनिट टाइम. तो उसके लिए मैं इसका प्रोजेक्टेड एरिया यहाँ पे ले सकता हूँ क्योंकि ये पैरेलल आ रही है लाइट यहाँ पे. तो दिस प्रोजेक्टेड एरिया इज़ ऑब्वियसली, सपोज इसके रेडियस को अगर मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, एनर्जी इंसिडेंट, so energy incident is simply this intensity multiplied by pi r square, or you can write p upon this 4 pi r square multiplied by this pi r square. This much energy is incident per unit time. This is energy per unit time. और यहाँ से ये पता चल जाएगा कि हाउ मनी फोटोन्स आर इंसिडेंट, कितने फोटोन्स यहाँ पर इस पर इंसिडेंट हो रहे हैं. सो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर सेकेंड और पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट per unit time. The energy which I calculated here, this energy incident is per unit time. That means it is the, let's say you can say it is power incident per unit time, power incident. So number of photons incident, so this much is the energy per unit time and you have to divide it by the wavelength, or sorry, you have to divide it by the एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. तो इसको आप एनर्जी ऑफ 1 फोटोन से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फोटोन्स कितने इंसिडेंट हो रहे हैं आ जाएगा. तो एनर्जी कितनी है यहाँ पर इसकी, तो जो फोटोन है यहाँ से जो फोटोन निकल रहा है, तो एक फोटोन की एनर्जी लैम्डा 1 इज़ गिवन. तो इससे मैं E1 लिख देता हूँ कि E1 कितना है. तो दिस इज़ 1240, दिस इज़ इन 12400, दिस डिवाइडेड बाय दिस 4960 एंड इट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और इसको अगर मैं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इट विल बी इन SI यूनिट्स. तो नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम, कितने फोटोन्स यहाँ पर इंसिडेंट हो रहे हैं, तो उसकी कैलकुलेशन. सो दिस इज़ इक्वल टू, सो p पाई r स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर डिवाइडेड बाय दैट
12400 divided by 4960 multiplied with 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 to convert in SI units. It is in electron volt. तो डेटाज आर वेरी इजी, डेटाज इजी हैं, इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे और ये वैल्यू पुट करने के बाद में दिस विल बी 2.5 इंटू 10 की पावर 15. तो इतने फोटॉन्स एमिट होते हैं पर सेकेंड, सॉरी इतने फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं पर सेकेंड. तो पर सेकेंड इतने फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं. अब इसके बाद में यहाँ पर ये कई सारे वेवलेंथ और इंसिडेंट कराए जा रहे हैं, कई सारे सोर्सेज और आ गए. तो ये जो 4960 दिस इज़ लैम्डा थ्रेशोल्ड ऑल्सो. सो दिस इज़ लैम्डा थ्रेशोल्ड 4960 एंगस्ट्रम विच इज़ लैम्डा 1. तो ये लैम्डा थ्रेशोल्ड भी है और इससे ज़्यादा अगर लैम्डा होगा, इफ़ लैम्डा इज़ मोर देन दिस, तो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. तो लैम्डा 2 इज़ लेस देन दिस, तो इसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. दिस इज़ मोर देन लैम्डा 1, so there is no photoelectric effect due to this. This is more than lambda 1, there is no photoelectric effect due to this. So these two will not be counted in our calculation. Okay, these two are not there. So only I have to take lambda 2 और lambda 2 के लिए भी power is adjusted in such a way that कि यहाँ पर जो number of photons आ रहे हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं यहाँ से वो सेम है. तो अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम यहाँ से एमिट हो रहे हैं तो उसी तरीके के डिस्टेंसेस वही स्फीयर है. तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो यहाँ पहुँच रहे होंगे, जो इंसिडेंट हो रहे होंगे इसमें, वो भी सेम होंगे लैम्डा 2 के लिए भी. ठीक है. तो फॉर लैम्डा 2 ऑल्सो सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी रीचिंग हियर. सो फॉर लैम्डा 2 ऑल्सो 2.5 इंटू 10 की पावर 5 फोटोन पर सेकेंड विल रीच दिस स्फीयर. इसके लिए भी इतनी फोटॉन्स यहाँ पर पहुँचेंगे. लेकिन अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जो लैम्डा 1 है दैट इज़ लैम्डा थ्रेशोल्ड. तो जो भी यहाँ पर स्फीयर है, इस स्फीयर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा होगा. ठीक है, लैम्डा 1 के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो हो रहा है. लेकिन क्योंकि एनर्जी इंसिडेंट इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स, तो एनर्जी इंसिडेंट अगर 5 के बराबर ही हो रही है तो के मैक्स इज 0. किसी तरह की काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास में होगी ही नहीं. देयर इज़ नो काइनेटिक एनर्जी फॉर सच इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलते भी हैं अगर बाई चांस, तो वो इस स्फीयर को छोड़ करके नहीं जा सकते. ठीक है, उनके पास में काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं कि वो स्फीयर को छोड़ करके जाएं. तो एक तरीके से वो इस स्फीयर का ही पार्ट है. दोज इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लिविंग दिस, दोज फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट लिविंग दिस स्फीयर. सो वो एमिट नहीं हो रहे हैं एक तरीके से. रियल सेंस में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड. और ये भी हो रहा है यहाँ पर कि अगर साथ के साथ अगर लैम्डा 2 वाली भी आ रही है यहाँ पर, तो उसके वजह से स्फीयर इज़ बिकमिंग पॉजिटिव. क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं लैम्डा 2 की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. क्योंकि लैम्डा 2 के लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी कितनी है, लेट अस फाइंड. सो एनर्जी ड्यू टू दिस लैम्डा 2 इट इज़ 12400 and divided by the value of wavelength. Wavelength is 4133. So this energy value will be 4133.33 something, and from here you can find it is around 3 electron volts. So this much energy is coming. And what is the phi work function? Work function is 12400 divided by this 4960. So what is the work function? So work function, from here you can find this work function is 2.5 electron volt. So for this lambda 2, what is the Kmax? Kmax for lambda 2 is 3 minus 2.5. This is 0.5 electron volt. And what is the stopping potential for this lambda 2? So stopping potential for lambda 2 will be 0.5 volt. This is the stopping potential. So Vs is Kmax by E and Kmax by E 0.5 volt. सो जो भी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे तो ऑब्वियसली वो लैम्डा 2 की वजह से निकलेंगे. और कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकेंड, तो फोटो एफिशिएंसी से वी कैन मल्टीप्लाई दिस. कितने फोटॉन्स आ रहे हैं, फोटो एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उससे पता चल जाएगा कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं. ठीक है, तो फोटो एफिशिएंसी ईटा इज़ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड और इजेक्टेड डिवाइडेड बाय दिस फोटॉन्स इंसिडेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट. तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने एमिट हो रहे हैं, अगर आई हैव टू कैलकुलेट दिस, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई फोटोन इंसिडेंट मल्टीप्लाइड बाय ईटा. सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, so eta is 10 to the power -6 and it is 2.5 into 10 to the power 15.
so it is 2.5 into 10 की power 9 per second. So this much photoelectrons are being emitted. So this is in option A. So this option is correct. So A option is correct here. Now I have to see when this photoelectron emission stops and after how much time. Okay, so this is going to happen. So let us first find. So in B and C, it is asking potential of this sphere. So potential of this sphere should be equal to this stopping potential 0.5 volts. So obviously in B and C, the option correct is C. So C is the correct option, which is 0.5 volt. Now I have to find after how much time it will happen. तो यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एमिशन हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन हो रहा है, वो कितने टाइम के बाद में बंद हो जाएगा. तो हो क्या रहा है कि ये जो स्फेयर है वो स्फेयर पॉजिटिव होता जा रहा है. जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो दिस स्फेयर इज बिकमिंग पॉजिटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स को इस स्फेयर को लीव करने के लिए इस पॉजिटिव पोटेंशियल को भी क्रॉस करना पड़ेगा. दिस इज़ लाइक सम पोटेंशियल बैरियर फॉर इलेक्ट्रॉन्स. सो जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे उनको इस बैरियर का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा. ठीक है. अब जैसे मान लीजिए कि स्फेयर का जो पोटेंशियल है धीरे धीरे बढ़ रहा है वो, तो अगर स्फेयर का पोटेंशियल लेट से 0.1 वोल्ट हो जाता है तो ये 0.1 वोल्ट को भी एक्स्ट्रा इनको क्रॉस करना पड़ेगा इसको यहाँ से बाहर निकलने के लिए. तो वैसे तो वर्क फंक्शन 2.5 का है, तो एक तरीके से इफेक्टिवली आप मान सकते हो कि जब ये 0.1 वोल्ट का हो जाएगा तो जो वर्क फंक्शन है वो 2.6 जैसा हो गया है. ठीक है. एक्चुअल में तो 2.5 है लेकिन इसके जैसा हो गया है अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर निकलना है. फिर उसके बाद ये जब पोटेंशियल 0.5 वोल्ट हो जाएगा तो एक तरीके से जो वर्क फंक्शन है वो 3 के बराबर ही हो जाएगा और जो एनर्जी आ रही है वो भी इतनी आ रही है तो बाहर निकल नहीं पाएंगे फिर ये. तो इसका मतलब पोटेंशियल जब 0.5 वोल्ट के बराबर हो जाए और उसके लिए कितना चार्ज हमको यहाँ पर जनरेट करना होगा, इस पर कितना चार्ज चाहिए और वो चार्ज कैसे क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से. तो लैम्डा 1 का उसमें कोई रोल नहीं है क्योंकि बिकॉज लैम्डा 1 की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं गए, सरफेस को नहीं छोड़ा उन्होंने. ठीक है. और वो रीअब्जॉर्ब भी हो जाते हैं. तो यहाँ पर तो यहाँ पर अब मुझे बस ये निकाल लेना होगा कि वो टाइम जब पोटेंशियल इसके बराबर हो जाए और उसके लिए हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड. तो पोटेंशियल का फॉर्मूला आई कैन यूज़ कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस, दिस शुड बी इक्वल टू 0.5. सो दिस इज KQ by R which is 0.5. फ्रॉम हियर आई कैन फाइंड द चार्ज, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड. 0.5 into radius is 1 centimeter and it is 9 into 10 की power 9. This much charge I needed, and for this much charge how many electrons should be emitted. So how many electrons, suppose n electrons should be emitted and this is E. So small n represents how many electrons should be ejected. So this n is 0.5 into 10 की power minus 2 divided by and 9 into 10 की power 9 and E will be 1.6 into 10 की power minus 19. Okay. And per second how many photoelectrons are emitted. So I have to divide from this rate, then I can find the time. So time is this n divided by this much rate. From this much rate this electrons are emitted. So 2.5 into 10 की power 9 you can divide this n, and from here you can find the value of time. This is approximately 1.388 into 10 की power minus 3 second. So let us see what time is being given there. So I am finding 1.388. So it is 1.388 10 to the power minus 3 and answer is approximately true, 1.39 into 10 to the power minus 3. So D option is also correct. So